Welcome guys for the another video in the informative Bajaj channel. I hope you found the other videos as well as informative, and similarly I'm going to make the video for today is related to the whole process of the study visa for the UK. Before that, please subscribe the channel, like the video, share the videos. So if you will keep support, I will keep uploading the informative videos. Last time I uploaded the video regarding the interview for the UK study visa for the university. I hope it would be helpful for you, and today I will explain you about the process for the UK study visa, the whole process. In the beginning, it's the same process like the other offer letters or the other countries, that you have to submit the documentation, whatever your academic qualifications and work experiences, to the universities, and you can apply to the multiple universities, and it depends upon the university's deadline that at which time they could give you the offer letters. And you would receive an offer letter after submitting all the documentation. You will receive firstly the conditional offer letter. In the conditional offer letter, they will mention about the course, the course details, duration, as well as the fee structure, whatever you have to pay, the living expenses, and all the other basic things, whatever is required, that how much fees you have to pay before the CAS or after CAS from India, or after reaching the UK as well. So it all the things will be mentioned on the conditional offer letter. So you should read it quite properly, and after receiving the conditional offer letter, they will ask you to, as per their policy, they will ask you to pay some of the fees. Like for my university, they asked me that to pay the 65% fees, and rest of the fees I can pay to the university after reaching to the UK in the second semester. So every university have the different criteria, like for example the Coventry University, in the Coventry they have a क्राइटेरिया कि उनको 35 समथिंग परसेंटेज पहले देनी पड़ती है बिफोर द इंटरव्यू, और आफ्टर इंटरव्यू 35%, एंड आफ्टर रीच 30% जो रिमेनिंग फीस रहती है वो देनी पड़ती है. और मेरी यूनिवर्सिटी की 65% फ्रॉम इंडिया पे करनी है, एंड 35% जो रिमेनिंग है वो सेकंड सेमेस्टर में पे करनी है मेरे को. और वो मैं एक्चुअली इंस्टॉलमेंट्स भी करवा सकता हूँ, और पेमेंट डायरेक्ट भी कर सकता हूँ वन शॉट में भी. सो ये एक फ़ी का स्ट्रक्चर रहता है. उसके बाद कंडीशनल ऑफर लेटर आपके पास आती है. देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द कैश. बिफोर द कैश दे विल आस्क यू फॉर द इंटरव्यू इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज़ टेकिंग टू द इंटरव्यू. 95% यूनिवर्सिटीज आज के टाइम पे इंटरव्यू ले रही हैं. सो आफ्टर रिसीविंग कंडीशनल लेटर दे विल गिव यू द डेट, लाइक within 10 days, 15 days, or even within 5 days you can get an interview date. And during interview I explained you in the last video whatever the questions you will be asked. So इंटरव्यू के बाद आपको उसके बाद आपको मेडिकल रिज़ल्ट आएगा. उसके बाद आपको मेडिकल करवाना होगा. अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है देन यू हैव टू डू द मेडिकल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफर लेटर के बाद आपको फ़ीस ज़रूर पे करनी पड़ेगी एज़ पर द यूनिवर्सिटी. अगर यूनिवर्सिटी ने बोला है कि इंटरव्यू से पहले फ़ीस देनी है, जैसे कि मेरे केस में था, इंटरव्यू से पहले फ़ीस ली गई थी 65%, तो मैंने फ़ीस पे कर दी थी. उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंड उसके बाद फिर अगला प्रोसेस आपका मेडिकल का आता है, जो आपको मेडिकल करवाना पड़ता है. एक नॉर्मल मेडिकल होता है, 3100 रुपीज़ कम ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट रहती है. वो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से, जो जिनको मान्यता मिली हुई है, उस हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं. जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, और मैक्स हॉस्पिटल इन द चंडीगढ़, दिल्ली में कई हॉस्पिटल्स, वहाँ से आप करवा सकते हैं. और मेडिकल की रिपोर्ट आपकी सेम डे पे आपको मिल जाती है, एंड देन आपको वो अपडेटेड करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को भी. और उसके बाद वो आपको कैश लेटर रिलीज़ कर देते हैं. अगर आपकी कोई फ़ीस की बात नहीं हुई, अगर आपका इंटरव्यू के बाद फ़ीस की पे करनी है तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कैश लेटर मिलेगा. अगर आपने पहले इंटरव्यू से फ़ीस पे कर दी और बाकी रिमेनिंग बाद में करनी है आफ्टर वीज़ा और या फिर आफ्टर रीच टू द यूके, देन आपको कैश लेटर फिर अपने आप वो आप अप्लाई कर देगा आपका एजेंट. तो कैश लेटर का भी ड्यूरेशन डिफरेंट है. किसी यूनिवर्सिटी की 5 दिन है, किसी की 2 दिन में भी आ रही है, किसी की 50 दिन में आ रही है. और मेरे केस में कैश लेटर मेरे को लगभग 30 दिनों के बाद मिली थी. और फाइनली जब मेरे को कैश लेटर मिली थी तो काफ़ी रिलीफ आता है बंदे को कि हमें कैश लेटर मिल गया, और नाउ वी कैन गो फॉर द फर्दर प्रोसेस. कैश लेटर में आपका प्रॉपर मेंशन होता है कि
ये आपकी फ़ीस कितनी है और आपने कितनी पे कर दी और कितनी आपकी रह चुकी है, और आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है, आपकी फ़ीस कितनी रह गई है और कितनी अभी आपको देनी है। तो एवरीथिंग दे मेंशन्ड ऑन द कैश डॉक्यूमेंट। मोर ओवर द रजिस्ट्रेशन डेट एंड द फाइनल रजिस्ट्रेशन डेट भी वहाँ पे मेंशन होगी। जैसे कि मेरी कैश लेटर में मेंशन है कि 4 दिन का गैप, अगर एक 24 को मेरे को रजिस्ट्रेशन करानी है और लास्ट वो 28 से पहले पहले मेरे को करवानी पड़ेगी। ओवरऑल एवरीथिंग वाज मेंशन्ड देयर। तो आपकी कैश लेटर आती है, उसके बाद आपको वीज़ा फाइलिंग करवानी पड़ती है एम्बेसी में। वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं यूके एम्बेसी की में जाके वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको पोर्टल पे अपनी सबसे पहले आपको वीज़ा फाइल लॉन्च करनी है। वहाँ पे जो जो डिटेल्स आपको पूछेंगे, आपके बेसिक डिटेल्स होंगी, कैश नंबर पूछेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, ऑफर लेटर, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड्स जो भी होगा आपको वो फिल करना है उसमें। और उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी है एम्बेसी की। वो लगभग अराउंड 38,000 के करीब रहेगी अगर आप नॉर्मल वीज़ा लेते हो, और अगर आप प्रायोरिटी का वीज़ा लेते हो तो इसकी फ़ीस अराउंड 65,000 रहेगी। एंड अगर आप सुपर प्रायोरिटी लेते हो तो उसकी फ़ीस आपकी ऑलमोस्ट 1,10,000 रहेगी। सुपर प्रायोरिटी में ये है कि आपको विद इन 24 आवर्स रिजल्ट मिल सकता है, और प्रायोरिटी में आपको 5 डेज़ में रिजल्ट मिल सकता है, 5 to 7 वर्किंग डेज़ में। और नॉर्मल में आपको वही 20 to 30 डेज़ के वर्किंग डेज़ में बिटवीन में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने अपने केस में जस्ट प्रायोरिटी का वीज़ा लिया है अभी, ना ही सुपर प्रायोरिटी लिया है ना नॉर्मल, मैंने प्रायोरिटी वीज़ा लिया, सो आई पेड 65,000। तो ओवरऑल आप इसके बाद आपको जब वीज़ा फाइलिंग कर रहे होते हैं उसके बाद आपको क्या कहते हैं इंश्योरेंस की पेमेंट भी करनी पड़ती है। वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 75,000 to 80,000 पर पर्सन के हिसाब से रहेगी। अगर आप 2 बंदे हो तो आपकी 1.5 लाख हो जाएगी, अगर 3 बंदे हो तो 75,000 समथिंग प्लस होती रहेगी। सो उसके बाद आपको इंश्योरेंस पे करने पे के बाद आपको एक लेटर मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर, और उसके लिए फिर आपको VFS ग्लोबल जाना पड़ेगा, और VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको अराउंड 1,800 to 2,000 चार्जेस लगेंगे। जैसे जैसे आप सर्विस लेते हो, कि आप SMS सर्विस लेते हो, मेल सर्विस लेते हो, कोरियर सर्विस लेते हो, उस हिसाब से आपको 1,500 से 2,000 के बीच में VFS सर्विस का भी पे करना पड़ेगा। देन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, जब का शेड्यूल पेंडिंग है, विद इन 2 days, 3 days, 7 days, 10 days, देन यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू डू द एवरीथिंग प्रोसेस देयर। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू डू। देन वहाँ पे बायोमेट्रिक होगी आपकी, और बायोमेट्रिक के बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा जिस तरह से आपने सर्विस ली होगी। आइदर इट इज़ 5 days प्रोसेस वाली सर्विस ली आपने, 24 आवर्स वाली ली है, या पूरे 20 days 30 days वाली ली है। सो दिस वाज अ नॉर्मल UK स्टडी वीज़ा प्रोसेस। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले एक ऑफर लेटर आपको मिलेगी, और कंडीशनल ऑफर लेटर, वहाँ पे ऑल द कंडीशंस मेंशन होगी। उसके बाद आपकी फ़ीस का स्ट्रक्चर रहेगा कि फ़ीस आपने पहले पे करनी है या फिर इंटरव्यू के बाद पे करनी है। कई यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू से पहले रहती है, कईयों में इंटरव्यू के बाद रहती है। उसके बाद आपका कैश से इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपको कैश लेटर मिलेगी, और आपका फ़ीस अगर वहाँ पे भी कुछ पेंडिंग है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तो आपको पे करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बाद आप पे कर सकते हैं एज़ पर द नॉर्म्स। तो कैश लेटर आने के बाद फिर आपको वीज़ा लॉन्च करना है, इंश्योरेंस पे करनी है, VFS ग्लोबल अपॉइंटमेंट लेनी है, एंड उसके बाद आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा। सो दिस इज़ द UK स्टडी वीज़ा प्रोसेस। मेरा ऑलमोस्ट डन है, बस मैं वेटिंग में हूँ। मैंने प्रायोरिटी वीज़ा लिया अभी लास्ट वीक ही, तो आई होप कि टिल मंडे और ट्यूसडे आई विल गेट माई रिज़ल्ट फॉर द वीज़ा, और आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू once I will get the result. Apart from this, I would say that please subscribe the channel, share this video if you like, and you can suggest in the comments if I have to improve something or I have to make a video on other topics as well. Overall, it's not a tough process, it's quite easy as compared to the Australia. So you can apply for the UK study visa, and next video I will explain you what the experience about the VFS Global. So मेरे साथ क्या हुआ था वहाँ पे, कैसे कैसे प्रोसेस रहता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। ओके, गुड लक।